Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta on Mumbai's Marine Drive, and my guests today, well, three fellow, I'd say younger Indians who made us laugh, cry, and sometimes made us wonder whether we should laugh or cry. Rahul Ram, hi. Varun Grover, Sanjay Raujara. Right now, the country knows you as three musketeers of ऐसी-तैसी democracy. But each one of you is a badmash in his own right, isn't it? So We hope so. you hope so. I think that's well certified. So describe yourself in sort of badmashi terms. Okay, I'm a guy who gets by just singing and playing the guitar. It's a beautiful way to live. I do it for Indian Ocean, and now I do it with ऐसी-तैसी democracy, and I'm having lots of fun. Okay, I'm a perpetually amused writer, and I write lyrics, I write screenplays for cinema, and I am a stand-up comedian, and I'm a part of ऐसी-तैसी democracy. Sanjay, So I am also part of ऐसी-तैसी democracy, and as Varun said, he's perpetually amused. I am perpetually angry, and that is why I do whatever I do. And sometimes people find it funny. but let me ask you one thing. You don't let your high qualification come in the way of having fun. क्योंकि आप इतना पढ़े, आपने डॉक्टरेट की कॉर्नेल से, वो भी टॉक्सिकोलॉजी में. आपकी ज़रूरत है इस देश में, चाहे आप इंसान की टॉक्सिकोलॉजी देखें, चाहे पेट की, चाहे दिमाग की, चाहे हवा की. Right? I mean, you can look at all kinds of toxicology. You are a civil engineer. Yeah. I know demolition is a very small part of civil engineering, so, Yeah, but you need more to- of it is building. Yeah, you What need to demolish first to build later. And you are a computer engineer who got the angry bug in you. Yeah, the fact that I worked in India's booming software industry only proves the point that I am a mediocre mind. तो क्या किया आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में? सर कॉपी पेस्ट जो इंडियंस करते हैं यूजुअली यहाँ से कोड उठाया वहाँ चिपका दिया, क्योंकि कोई रिवोल्यूशनरी काम तो यहाँ पे मतलब मेरे रहते तो कोई हुआ नहीं. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने लिख दिया या कोई एल्गोरिथम ऐसा सर्च का बना दिया. यूजुअली पीपल डू व्हाट दे डू, दे गो टू अमेरिका, दे राइट सॉफ्टवेयर्स फॉर वॉलमार्ट. उनका कैश रजिस्टर कैसे खुलेगा? तो मीडियोकर माइंड होना ज़रूरी है उसके लिए सर. और आप तो और ज़्यादा सीरियस पढ़ाई करके आए हैं. ज़्यादा पढ़ लिया मैंने. ज़्यादा पढ़ लिया. तो इतनी गलती कैसे हुई? आदत. एक्चुअली मैं IIT में मास्टर्स किया, और IIT में From which सब- IIT? IIT कानपुर. अच्छा. तो सब अमेरिका चले जाते हैं, हाँ. तो मैं भी चले गया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक भेड़ चाल में अमेरिका जी गया और PhD कर ली. बहुत मजा आया मुझे PhD करने में, क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल इशूज फ्रॉम माई स्कूल टाइम. And then you joined Medha Patkar का. Then I worked with the Narmada Bachao Andolan for about 5 years, I would say. But actually I was doing research for them on environmental impacts and financial viability and such like. और साथ साथ में मैं अपने दोस्तों के साथ इंडियन ओशन में ज्वाइन कर लिया मैंने. तो ग्रेजुअली म्यूजिक टुक ओवर माई लाइफ. धीरे धीरे बन गया म्यूजिशियन. लेकिन आप लोग जो बचा रहे हैं, आप हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर बचा रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस कंट्री वी हैव जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर, वी हैव ए ह्यूमंगस सेंस ऑफ रूमर. है ना? एंड अ ह्यूमंगस सेंस ऑफ आउटरीच. Yeah, आउटरीच sense of नहीं, outrage. आउटरीच नहीं है. आउटरीच को मैं कहता हूँ शाउटरेज. वो हाँ, वो रावण चैनल्स है ना, 10 हेड्स होते हैं, वो एक साथ सब बोलना शुरू हो जाते हैं. एंड समटाइम्स वॉल्यूम गोज अप विदाउट योर टचिंग रिमोट कंट्रोल. समटाइम्स नहीं. All the time, all the time. So how do you bring in humor to this society, जहाँ पे सबकी इतनी पतली स्किन है? Okay, probably we have not, probably we are very hopeful about that segment of society which still sees things the way we see things, you know, and we believe कि ये वाला segment है जो बहुत बड़ा है, जो धीरे धीरे if they start laughing, 10 people who are not laughing right now will realize कि okay, maybe there is something funny in this. There is something inherently funnier than being angry about it. That kind of a thing. Actually, I don't think we have this intention of कि कोई हमको देखे और फिर चेंज हो जाए या कुछ बदल जाए. ऐसा नहीं है. मतलब वी डोंट ट्राई दैट. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग क्या कर रहे हो यार, देखो यार क्या है ये, एक बार आईना देख लो एक तरीके से. उस आईने में कभी हम भी खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपनी बात करके हम खुद ही सुनते हैं तो यार कि ये हमें नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या बोल दिया हमने. तो हंसाने का तो जिनकी पतली स्किन है उनका
तो कुछ इलाज नहीं करना है, पर उन पे मेरे को हंसी आती है तो मैं उनको बताता हूँ मैं तुम पे हंस रहा हूँ यार, क्या उनको करें? गैंडा खिला दो। क्या मतलब वो मोटी स्किन मोटी स्किन? अच्छा ये ऐसे ऐसे मारते हैं ये कॉर्नल की पीएचडी है। अच्छा या मेरी तरह से स्पेंड 3 इयर्स नॉर्थ ईस्ट असम में रह के आओ, सीखो राइनो से। हाँ Yeah, but we are an inherently funny country, we think, because if you just take thoda sa detached view, no, हाँ any news you read or most of the news you read which is, you know, for people who are attached, is very sensitive news. It's actually very funny. So Rahul sir, you were also an angry activist, I was a very angry. very angry activist. And from angry, are you still angry, or are you having fun, or are you expressing anger through fun? Well, my anger has come down because it's become tinged with a lot of humor. I see the funniness of a lot of things. I see the hypocrisy of a lot of things. And I have great fun making fun of that. And that's why I love doing ATD, because इन लोगों के साथ जो absurd है ना, हमारा जो country theatre of the absurd जो है उसको celebrate करते हैं हम लोग, I think, to a certain extent. So you three met sort of coincidentally. You saw him performing, Yeah. and you told him that his performances need music. Yeah, yeah. This was a long time back. One of the first times he was on stage, and I loved it. I was blown away by him. कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए हमारे देश में. मैंने वरुण को देखा, I was blown away by his performance. Yeah, and I saw him in Bombay, he saw me in Delhi, and they both But had, this sounds like a gangster movie. है ना? है ना? And Ajit finds Amitabh Bachchan, and together they find the third guy. Yeah, and I actually had not even met him when I agreed to do ATD. अच्छा. But I had met his work through Kanpura. That मैंने कहा, बस, Kathiawaz. enough. So what is the stupidest thing you've said in your performances? सर बहुत वो है, हमें बोलने दो. नहीं काफ़ी हैं जो बाद में खुद रियलाइज़ होता है कि सर एक्चुअली ये भी है ना कि आप जब शुरू किया था मैंने तब से और अब तक 6 साल हो गए, यू ऑल्सो ग्रो एज अ पर्सन, आपकी पॉलिटिक्स भी ग्रो करती है. तो 6 साल पहले जो बात मैं बोलता था वो अब मेरे को वो नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए. तो उस वक्त की बहुत सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं, जैसे फेमिनिज्म के ऊपर मैंने काफ़ी बोला था. हालांकि उस टाइम मैं सोचता था कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन अब मुझे आके लगता है कि वो करेक्ट नहीं था. इतना करेक्ट नहीं था और मैं शायद उसे दोबारा ना बोलूँ, बोलूँ तो उसकी पॉलिटिक्स ठीक करके बोलूँ. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. That's a political correctness thing. नहीं, मतलब वो मेरी पॉलिटिक्स नहीं है. मतलब आई विल नेवर से समथिंग विच इज़ जो फेमिनिज्म को मजाक उड़ाए या उसका वो करे. तो वो एज यू ग्रो पॉलिटिकली, कई लोग बोलते भी हैं कि आपकी पॉलिटिक्स चेंज होती है, आप ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाते हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ पे लगने लगता है कि ये पॉलिटिकली Then you start taking yourself too seriously. Too seriously. But what is it that you say now that people find most funny? एक दो बातें बताओ. सर ज़्यादातर तो लोग जब अपनी पर्सनल स्टोरीज आप You बाहर can do it like you're performing. Life is all about. जो अभी देखा था, जो क्या? जिसका एक हिस्सा देखा था, अच्छा वो हाँ जैसे या अभी कुछ भी, जो हाँ भी, जो- मतलब दो चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल उठाने का मन करता है, वो जो हमारा जो एक फैमिली का जो होली काउ यूनिट है ना, कि क्योंकि हम खुद ATD में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, लेकिन हमारी फैमिली जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो अपने आप में अंदर डेमोक्रेटिक नहीं है. वो कास्टिस्ट भी है, शोविनिस्टिक भी है, पेट्रियार्कल भी है. उसको बहुत कम लोग क्वेश्चन करते हैं. अलबत्ता बाहर जाके ज़रूर सब हर चीज़ के लिए नारे लगाने लग जाएंगे. तो उसको जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो या तो लोग खूब हंसते हैं या इंटरनेट पे गालियाँ पड़ती हैं कि क्या इंटरनेट तो बना ही गाली के लिए. हाँ वो इंटरनेट हैज बीन डिजाइंड फॉर वेंटिंग. जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे, अभी आपका वेट कर रहे थे, तो एक न्यूली वेड कपल था, वो अपनी मैरिज सेलिब्रेट कर रहा था यहाँ पे, तो पोज कर करके फ़ोटो खिंचा रहे थे कोट वोट पहन के. तो लड़की ने भी स्कर्ट पहनी हुई थी और चूड़ा नहीं उतारा था, लेकिन तो मुझे वो साइड ही फनी लगती है, इनके कर क्या रहे हो यार. बहुत सारे लोग लड़ते हैं मेरे से कि यार हमारी मर्जी हम करें. इट्स लाइक वो करवा चौथ होता है ना सर, उसमें बहुत सारी लड़कियां करवा चौथ जो वैसे तो वोडका सिपिंग फेमिनिस्ट हैं, पर वो उस दिन करवा चौथ वाले दिन वो कुछ हो जाता है उनको. वो फेसबुक पे चांद के साथ फोटो लगा देती है, उनका पति मौक वो लिखता है प्लीज़ चांद निकला, मेरी बीवी भूखी है और वो खाना खा ले. तो मेरे को देखा पागल हो गया तुम लोग. तो वो कहते भाई हमारी मर्जी है, हमारा मन करता है, हमारा कल्चर है. मैंने कहा ये कल्चर क्या है, ये कहाँ से कल्चर है. कोई बुर्का पहन के घूम जाए तो उसको क्वेश्चन करने लग जाते हो कि ये देखो इनका कल्चर ऐसा है. अपने बारे में तुम खुद कर रहे हो. तो मैं भी गुस्से में बोलता हूँ एक काम करो यार, अगर ये कल्चर है तो सती प्रथा भी शुरू कर दो. दो बेवकूफ़ एक साथ ही मर जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा.
So Varun, you've added new things to your performance now. Yeah. So tell us about some of the new things that you've added. अच्छा, तो एक तो ये साल क्योंकि ख़त्म हो रहा था तो हमने सोचा कि ये 2015 में जो Earth shaking stories. ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे सच में लगे कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो हमने एक लिस्ट बनाई कि ये अच्छे दिनों की निशानियां हैं, ये जो 10-12 चीज़ें हैं साल की। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे जो है हाँ. बैन कर दी हमारे सेंसर बोर्ड ने। इस साल काफ़ी कुछ बैन हुआ है, जब से प्रहलाद नीलानी आए हैं तब से उनका एक वो है कि सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है. जैसे हर हफ्ते बनारस में कहा जाता है कि हर हफ्ते 2 त्योहार होते हैं बनारस में, 7 वार 3 त्योहार, ऐसा बनारस का है। वैसा ही है, 7 वार और 3 बैन इनके चल रहे हैं प्रहलाद नीलानी के। तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे उनके हिसाब से इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सेक्स था। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा सेक्स की उनकी डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कितना उनके लिए ज़्यादा है, क्या उन्होंने बताया। अरे उतना करो ना जितना जरूरी है, फालतू क्यों करते तो वो फिल्म बैन कर दी। मेरा कहना है कि 50 उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, इसमें से सेक्स सीन काट के रिलीज कर दीजिए, उनका ये सजेशन था, तो वो फिल्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे माइनस सेक्स सीन्स इज लाइक सोनिया गांधी माइनस हर लास्ट नेम, यू नो, कंप्लीटली यूजलेस पावरलेस काइंड ऑफ अ थिंग। और 50 शेड्स ऑफ ग्रे फिर भी इन्होंने बाद में रिलीज हुई इंडिया में, माइनस सेक्स सीन्स हुई, उसका नाम था प्रेम रतन धन पायो। बदमाश है। इस तरह के फिर सेंसर बोर्ड ने एक और, उसके बाद हमारा नवंबर में भी इन्होंने जेम्स बॉन्ड तक को नहीं छोड़ा। जेम्स बॉन्ड हाँ, की उसके बोला 3 केस नहीं। हाँ, स्पेक्टर फिल्म आई, उसका उन्होंने किस सीन की लेंथ इन्होंने डिसाइड की बैठ के बोर्ड कमेटी ने कि 8 सेकंड तक अलाउड है, 10 सेकंड की किस अलाउड नहीं है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ इन्होंने ये कैसे डिसाइड किया Who sits with the timer in front of him? और क्या James किया Bond, हाँ. उन्होंने, कैसे वो बैठ के उन्होंने क्या देखा कि उनके अंदर क्या क्या भाव उठे और कहाँ उनके भाव उस लेवल पे चले गए जहाँ पे वो कैची चल गई। हाँ, जहाँ पे ये हो गया कि ये तो अश्लील हो गए, आपका चेहरा अश्लील हो गया या आप बहुत ज़्यादा लार टपकने लगी, जहाँ उनके मुंह से उन्होंने कहा हाँ ठीक है यहाँ से 2 सेकंड काट दो और ये रिलीज कर दो। तो मेरे ख्याल से एक तरह की किस अलाउड है, विच इज सेंसर बोर्ड किसिंग द एस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। Any other highlights of last year? 12 stories up. Oh, I think one of his highlights was the release of MSG. Messenger of God. हाँ. हाँ, वो एक उसमें उस फिल्म की सबसे खास बात तो ये थी कि उसके जो बनाने वाले जो हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह जी, इंसान। हाँ, वो इंसान हैं तो हम सब क्या अमीबा हैं क्या, मुझे ये जानना है। और संजय, आपकी हाइलाइट्स क्या है सर इस दफ़ा हमने अच्छे दिन की? हमने किया कि अब जैसे हमारे यहाँ पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने पे बैन है, तो जिस तरह का सिचुएशंस हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो हमने सोचा कि जैसे स्मोकिंग रूम आपने साइड में बना दिया, वैसे फ्री थिंकिंग रूम भी अब साइड में कोने में बनना चाहिए कि जिसको भी खुले दिमाग से सोचना है वो बाहर ना करे, अंदर जाके करे, बाहर माहौल ख़राब ना करे। और स्मोकिंग तो फिर भी 30 या 35 सालों में मारती है आपको। अगर आपने वो फ्री लिबरल थिंकिंग बाहर करी तो पहले तो आपको लिपटाट पता नहीं क्या क्या गाले देंगे, वहीं पर मार देंगे आपको। और ये वो स्मोकिंग रूम का हमने थीम सॉन्ग भी बनाया था, जो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। स्मोकिंग रूम में घुसने से पहले गाना बजता है। अच्छा, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, जो कहना है उधर ही कहो। और वो जो द होल इंटॉलरेंस डिबेट ना, वी आल्सो ब्रॉट दैट इनटू द शो दैट, क्योंकि बहुत पीछे बहस हुआ, इसने बोल दिया कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है तो उसको पाकिस्तान भेज दो, उसको यहाँ भेज दो। तो हम वो भी थोड़ा सा टच किया कि हम कहाँ, इतना टॉलरेंट कंट्री कहाँ मिलेगा दुनिया में। हम इतने टॉलरेंट हैं कि हमने 1984 को माफ़ कर दिया, हमने यूनियन कार्बाइड को माफ़ कर दिया, हमने डिमोलिशन को माफ़ कर दिया, हमने 2002 को माफ़ कर दिया, हमने सलमान खान को माफ़ कर दिया। हम तो कितना माफ़ करते हैं, तो कौन कहता है हम सलमान खान को माफ नहीं किया, उनको तो इनोसेंट डिक्लेयर। कोई तो चला ही नहीं रहा था सर, बाइज्जत। बाइज्जत बरी हैं सर। तो वी आर सो टॉलरेंट दैट वी लेट इट गो, वी स्वीप एवरीथिंग अंडर द कारपेट। किसी को हम सज़ा देते नहीं, तो हमसे कहाँ, हमारा इतना फ़नी कंट्री है कि अगर किसी और कंट्री में कोई मरता है तो उसकी फोरेंसिक जांच होती है। हमारे यहाँ कोई मरता है तो वो तो पड़ा रहता है, उसके फ्रिज से मीट निकाल के उसकी फोरेंसिक जांच होती है कि ये क्या है।